all the cooperatives of the country be proud to be a cooperative. I wish all the best wishes for this Diwali to achieve the objective of Sahkar se Samruddhi. Thank you. नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं। मैं आपको कुछ ना कुछ देने की हमेशा कोशिश करता हूं जो आपको हेल्प करता है बैंक चलाते वक्त किस तरह से सोचना चाहिए और किस तरह से डिसीजंस लेनी चाहिए। दैट इज माय इंटेंशन। आई हैव अ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव टू हेल्प यू in managing your bank and its affairs very professionally. I'm going to talk on one particular topic which is not a part of Reserve Bank of India circulars. Reserve Bank of India has not issued any circular, but Reserve Bank of India has been talking on this particular topic for quite a while, and they have made uh, indirect references to the subject which I'm going to talk. Recently, when I say recently, it's a few months back, that is perhaps in the month of May, the Reserve Bank of India had organized a small seminar for the commercial banks and private sector banks and their members of their board. And Shaktikanta Das addressed this particular gathering. Not many have picked up the story. Not many bankers have picked up the story. Forget about the urban cooperative banks. Urban cooperative banks have not paid any attention to this particular story. This particular story where this seminar was organized on 29th of May this year, and Shaktikanta Das made a couple of statements which I would like to read out to you. Then I'll move on to the topic. Right? Shaktikanta Das said to this congregation of members of the board of the commercial and the private sector banks, he said that individual directors on the board of the bank should not have any conflict of interest which may hamper their objectivity and independence. It is the responsibility of the board to ensure that policies are in place to identify potential conflict of interest and deal with them. Now, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा ध्यान देती भी नहीं है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो सब डायरेक्टर्स अच्छी तरह से काम करते हैं, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। सब डायरेक्टर्स मिलजुल के बैंक के इंटरेस्ट में काम करते हैं। राइट, दिस इज व्हाट आवर थॉट प्रोसेस इज। लेकिन इसके बाद में ऐसा हुआ कि कुछ commercial banks or some cooperative banks, I would not like to name them because it will not be proper for me to name them, they were pulled up by Reserve Bank of India for having instances of conflict of interest. अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इंस्टेंसेस और आरबीआई के सर्कुलर्स और डायरेक्शंस कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन देयर आर एल्यूजन्स, जिसको हम कहते हैं ना कि इनडायरेक्ट रेफरेंसेस। मुझे तो खुद को ये लगता है कि ये एक गवर्नेंस का, बैंकिंग में जो गवर्नेंस की चर्चा चल रही है उसका एक बहुत बड़ा पहलू है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। अब जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिफेंस लेकर के कई बैंकों को पनिशमेंट अगर दी गई है, तो एज अ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और सीईओ, we should be aware of what this Jamila is all about, conflict of interest. Now, if you look to various definitions which are available for conflict of interest, मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से होता है। हर एक बंदे में दो इंटरेस्ट होते हैं, दो। एक होता है प्रोफेशनल इंटरेस्ट और दूसरा होता है पर्सनल इंटरेस्ट।
अब जब ये दोनों इंटरेस्ट क्लैश में आ जाते हैं उसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, मेरा प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, दो इंटरेस्ट। और तीसरा आ गया जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो है वेस्टेड इंटरेस्ट। मेरा तो खुद का ये मानना है कि वेस्टेड इंटरेस्ट गिव्स द बर्थ टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट अगर है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने ही वाला है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो दो चार थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होता है? इट occurs when an entity or individual becomes unreliable because of clash between personal interest and professional interest, and such a conflict occurs when a company or a person has vested interest such as money, favor, status, which puts questions on the unbiased decisions of the board. आपने सुना होगा कई बार कि कई बार हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी केस में डिसीजन देने के लिए ना बोलते हैं, और लीगली उसको टर्म है दे रिक्यूज देमसेल्फ, दे एग्जम्प्ट देमसेल्फ, दे स्टे अवे। ये वो किस लिए करते हैं? क्योंकि जो केस उनके सामने है उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, हो सकता है, तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। वो इन्वॉल्व इसलिए नहीं होना चाहते कि अगर आपने आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें है, वो उसको छुपा के रखा, कल जाके ये ओपन हो गया तो जो डिसीजन लिया गया है वो बायस्ड डिसीजन है, ऐसा एलिगेशन हमेशा हो सकता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत तीखी तरह से देख रही है। अब ये तीखी तरह से देखती कैसे हैं? आपके पास जब आरबीआई का इंस्पेक्टर आता है तो आप कई बार सोचते हैं ये बंदा आरबीआई का आईओ हमारे पूरे बोर्ड के मिनट्स पढ़ता है, पूरे बोर्ड के मिनट्स। क्यों पढ़ता है? वो बोर्ड के मिनट्स क्यों पढ़ता है? बीआर एक्ट आने के बाद में और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्या स्ट्रिक्ट हो गए हैं? वो आपके बोर्ड के मिनट्स में से ढूंढ के निकालते हैं कि आपका कोई बंदा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अटका हुआ है या नहीं है। मैं जिस बैंक में पहले था वहां पे एक केस ऐसे हुआ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, और आपको बताना जरूरी है। बोर्ड का इलेक्शन हो गया और एक बंदा, अच्छा बंदा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा, हमारे बैंक के बोर्ड पे सिलेक्ट होके आ गया। वो बंदा एक एनबीएफसी में ट्रेजरी हेड था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड हिज एसोसिएशन विद द बैंक एज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनका ये मानना था कि बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रोफेशन एंड बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ डायरेक्टर ऑन द बैंक्स बोर्ड he could influence the treasury decisions of this particular bank. तो बंदे को रेजिग्नेशन लेके मामला रफा दफा कर दिया, रिजाइन करना पड़ा। अगर ये इलेक्शन के टाइम पे ही आप देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आप अगर ज्यादा सजग हैं, सावध है, जिसको हम कहते हैं अलर्ट है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं होगी। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मेरा खुद का ये मानना है कि ये पोटेंशियल हो सकता है, रियल हो सकता है। पोटेंशियल यानी सामने दिखता नहीं है, नजर में नहीं आता है। इट्स ओनली द ऑनेस्टी ऑफ द कंसर्न पर्सन दैट enables you to assess and evaluate whether there exists a conflict of interest or not. कई बैंकों में मैंने देखा है कि हमारे जो डायरेक्टर बंधु होते हैं वो रिक्रूटमेंट के टाइम पे अपने कुछ बंदों को लगवाने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक के ध्यान में आ गया तो इट इज अ सीरियस वायलेशन। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अगर आपको जानना है एज ए डायरेक्टर और एज एन एग्जीक्यूटिव, एज एन ऑफिसर, रिजर्व बैंक ने सबसे पहले, मेरा ख्याल है 2007 या 8 में, वो माधव दास कमेटी के बाद, शायद माधव दास कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद में बोर्ड के ऊपर एक मास्टर डायरेक्शन निकाला, वो आगे चलते आया। अब वो जो मास्टर डायरेक्शन है फॉर बोर्ड्स, डूज एंड डोंट्स एंड सेवरल थिंग्स, 2015 के बाद नया निकला नहीं है।
वो सर्कुलर भी आउटडेटेड हो गया, रिजर्व बैंक का ध्यान नहीं है। वो आउटडेटेड कैसे हो गया? आउटडेटेड बीआर एक्ट जब आ गया उसके बाद में देयर वर सेवरल चेंजेस व्हिच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुड हैव डन इन दैट मास्टर्स, दे हैव नॉट डन इट, दे हैव ओनली स्ट्रेस्ड अपॉन द ऑडिट कमिटी इन दैट पर्टिकुलर सर्कुलर। अब वो सर्कुलर में ऑडिट कमेटी का इंपॉर्टेंस जो है वो भी इंसिस्ट करते करके रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जब आ गया तो सर्कुलर नीड्स अ रिवीजन, बट देन रिजर्व बैंक विल डू इट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू डू। रीड दिस सर्कुलर, यू रीड दिस सर्कुलर एंड यू विल फाइंड दैट जो भी डोंट लिखा है ना उस सर्कुलर में, और अगर आप करते हो तो आपके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिगेशन या चार्ज बन सकता है। नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉपुलर एग्जांपल कैसे दिए जाते हैं? वो ऐसे है कि आपके डायरेक्टर बंदे का कोई दोस्त है, उसको बैंक से कर्जा लेना है, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी अमाउंट है, वो कर्जा जब लेना है, ऑनेस्टली कंसर्न डायरेक्टर क्या बोलता है, आई नो दिस पर्सन और इसको दो। अब when you say I know this person, you have to ensure that whether he is coming into the definition of relatives with this that very secular has given. अगर रिलेटिव है तो आपको देना ही नहीं है, रिलेटिव नहीं है, दोस्त है, इसका मतलब है पर्सनल इंटरेस्ट है। पर्सनल इंटरेस्ट जब है तो ये जो तुम्हारा डायरेक्टर बंदा बोल रहा है कि इनको पैसा देना चाहिए, he should stay away, abstain from the decision which the board is taking and create records of that. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई डायरेक्टर किसी भी चीज में इंटरेस्टेड है या उसका कोई बंदा है तो उसको डिक्लेरेशन आपको देना जरूरी है कि ये आई नो दिस पर्सन एंड आई फील दैट आवर बैंक शुड कंसिडर दिस केस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा जब होता है तो सीईओ की ड्यूटी बनती है कि वो रिकॉर्ड में लाए, दैट शुड बी ब्रॉट इन रिकॉर्ड एंड ही शुड abstain when the particular case is being discussed for decision making and create a record of abstinence also. फिर भी रिजर्व बैंक नहीं मानती है कई बार, ऐसा हमने देखा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि यू आर देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, यू आर नॉट देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर इंटरेस्ट। सो व्हेनेवर देयर आर टू इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट्स। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट जो है, इसको अगर आपको डील करना है तो आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको एब्स्टिनेंस, रिक्यूज और क्लैरिटी इस सब चीज में आपको लाना जरूरी है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिगेशन रिजर्व बैंक आपके ऊपर ना कर सके। हिंदी में 2 शब्द है इसके बारे में, एक हित संबंध, और हित संबंध के अपोजिट क्या है? हित संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट हित संघर्ष, इंडिविजुअल के हित में आया हुआ संघर्ष। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो घर घर में है सर, आप अपनी मां की सुनोगे या बीबी की सुनोगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि दोनों जगह पे आपका इंटरेस्ट है, पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये जो चीज है ये बिल्कुल संभल के आपको लेनी है, क्योंकि इसकी तरफ अब रिजर्व बैंक का ध्यान धीरे धीरे बढ़ रहा है और रिजर्व बैंक ये चाहती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बैंक शुड हैव देयर पॉलिसीज इन प्लेस, सिस्टम्स इन प्लेस। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो उसको डील कैसे करना है, इसका डिसीजन आपके बोर्ड ने पहले ही लेके रखना है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, ये इसकी क्लैरिटी अगर आपके बोर्ड के बाकी मेंबर्स को आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद वो डिसीजन को पुश करना लैक्स ट्रांसपेरेंसी, लैक्स ऑनेस्टी, लैक्स इंटीग्रिटी। सो इट्स एक्सट्रीमली, एंड बेसिकली मेरा ये मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, बोर्ड के बाकी मेंबर्स को या सीईओ को सपना थोड़ी आने वाला है, सपना नहीं आएगा उनको। ये जो इंडिविजुअल बंदा है उसे समझना चाहिए, उसे ये समझना चाहिए, एंड देन एक्शन स्पीक्स लाउडर। योर एक्शन शुड बी सच दैट
It should defend yourself on the sidelines of integrity, honesty, and sincerity. Now, this is a topic where you have to draw several inferences from several other circulars. There is a latest circular issued by Reserve Bank of India which talks of conflict of interest indirectly but subtly. And which is that circular? Apart from the do's and don'ts, there is one circular. It is about the compromise settlement and write-off. क्या कहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सर्कुलर में? जिस बंदे ने ये लोन सैंक्शन किया है वो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट की कमेटी में नहीं होना चाहिए या राइट ऑफ की कमेटी में डिसीजन लेने के लिए नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? The authority which is sanctioning a loan is the same authority which is waiving off or which is entering into a settlement with the borrower. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है. तो आपको जब ये राइट ऑफ या प्रूडेंशियल राइट ऑफ या जो भी आप करना चाहोगे तो आपके कमेटी की जो सदस्य सैंक्शनिंग में थे इस लोन के वो सेटलमेंट में या राइट ऑफ में के कमेटी में नहीं होने चाहिए. वो अगर है तो रिजर्व बैंक ये सीधा कहने वाली है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इज नॉट हैंडल्ड बाय द बैंक प्रॉपरली एंड दे कैन पनिश यू, पीनलाइज यू. ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों रिजर्व बैंक सीरियस हो रही है? हम 1300-1400 बैंक है, 28,000 डायरेक्टर्स है, उनमें अगर डिसिप्लिन नहीं आता है तो ये जो सर्कुलर्स है इसके मायने ही नहीं लगते कुछ. And therefore it is necessary that we all should be sincere and transparent whenever there is a subject which is known to you and where you have personal interest. Please declare. A step will come, a stage will come where the concept of conflict of interest will get diluted to the senior level executives of the bank, which is already there. CEO को अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है तो he has to remain absent. He has to abstain from the decision making process. लिखा कहीं नहीं है. It's nowhere written. Now this is the subject which will take the sector by storm if not handled properly. And therefore I chose to talk on this particular topic where there are no specific instructions from Reserve Bank. Reserve Bank शक्तिकांत दास का वो 29 मई का स्टेटमेंट है, वो इतना ही कहते हैं कि भैया आपको ढंग से वो करना है, नहीं तो ये डायरेक्टर्स का जो इंडिपेंडेंस है या ऑब्जेक्टिविटी है, उनकी विचार करने की ऑब्जेक्टिविटी है, वो हिल जाएगी. और जब आप पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करते हो तो इट्स नेसेसरी फॉर यू दैट you ensure that you do it transparently and properly and protect the interest of the depositors. बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है. टॉपिक बहुत बड़ा है. मैंने टॉपिक की शुरुआत इसीलिए की है कि मैं आपसे सवाल चाहता हूं सिचुएशन वाइज. आपको ये लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या नहीं लगता है? लेट अस डिस्कस. मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करता हूं और मेरा ईमेल आईडी हमेशा देता हूं. कुछ भी सवाल, कुछ भी डिफिकल्टी इस बारे में नहीं, किसी भी बैंकिंग के किसी भी मैटर के बारे में है, पूछिएगा. बिकॉज आई फाइंड दैट not good many people are helping the banks in a good way and you have to remain alert. That's my only advice. Thank you for watching me. Thank you.